Hi, greetings from SDMIC classes. My advice is that nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. Now we are continuing with our chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts, part 10. It's the 10th class. Hope you must have watched the previous classes. I believe you all must have understood. I request you all to pay attention. We were discussing some important adjustments in the final accounts. After preparation of the first trial balance, there will be some important adjustments coming, like depreciation, some prepaid expenses, pre-received income, like that. Now so many adjustments are coming. That adjustment entries, how to pass that adjustment entries without making a final trial balance. That is what we were doing. So the direct adjustments after preparing the first trial balance, and the direct adjustment to the trading profit and loss account and the balance sheet, that we were discussing. Now let us continue. We have discussed up to 16 points. What are the 16 points we have done? First, closing stock, second, outstanding expenses, third, prepaid expenses, fourth, income received in advance, that is pre-received income, then fifth, income receivable, sixth, bad debts, seventh, provision for doubtful debts, eighth, reserve for discount on debtors, ninth, depreciation, 10th, there are 3 points in 10th, interest on capital, interest on drawings, and interest on loan taken. And the 11th adjustment was interest on investment or loan given by the firm. Then 12th, there were 2 adjustments. Goods destroyed by fire or any accident. First part was insured goods, and the other one was uninsured goods. Then we learned goods stolen, and then goods distributed as free samples. So maybe can be taken as an advertisement. 15 point, goods withdrawn by partners for personal use. And 16, there were 2 adjustments, unrecorded purchases and unrecorded sales. Up to this we have done in the last class. So now we will continue with the 17 point. 17, there are 2 adjustments: capital expenditure included in revenue expenditure, and revenue expenditure, second point, revenue expenditure included in capital expenditure. Now what is it? What is capital expenditure? Expenditure incurred on capital, and that is not a recurring in nature. So that is called capital expenditure. That capital expenditure do not repeat again and again. That is once in a while, or any other major breakdown, or any other things, any major expenditure incurred on assets, and that assets, the effect of that will be giving in the following few years. So that is called capital expenditure. And revenue expenditures are in recurring nature, means that repeated, means every now and then. It can happen in a year, it can happen once, twice, or many times, multiple times. It can happen many times. That is a revenue expenditure. And revenue expenditure are incurred to earn income in a regular course of time. So that is what is called the difference between capital expenditure and revenue expenditure. So what is the effect of that entry? First will be deduct from that particular revenue expenses on the debit side of the trading or profit and loss account, and add to that particular asset in the balance sheet asset side. And second, the revenue expenditure, add to that particular revenue expenditure and deduct from that particular asset in the balance sheet. So when I am just telling that, it seems to be confused, like, means when you won't be able to understand properly. So we will do that practically example. So how to do that entry. Some example I will show you, so it will be very clear. So let us start doing that. So the capital expenditure included in revenue expenditure. So say, for example, furniture and fixture. Why I am taking that furniture and fixtures? It's already taken in the balance sheet. Now see, that is the reason. So all the entries now we will be taking in that, means whatever any adjustments coming, for the purpose of just making you understand.
There are other examples also, machinery, means electricals and vehicles, etc. So there are some others also, but we take it as an example for furniture and fixtures. So I'll show you how that adjustment entries are coming. So for example, furniture and fixtures carry forward was it is 6,05,000. Purchased 2 executive chairs at the rate of 5,000 rupees each. So 2 chairs for at the rate of 5,000 each will be 10,000 rupees. So how the entry is coming? Furniture and fixture is 6,05,000, and capital expenditure wrongly taken in revenue expenditure. Capital expenditure wrongly taken in revenue expenditure, that is called that is 10,000 rupees. This 10,000 rupees. So now what will be the effect? 6,15,000 is the total. Okay, in the end I will show you how that means that a furniture account is completed. Okay, done. So now let us start with like this. Means this is 6,05,000. 6,05,000 plus 10,000, 6,15,000. 6,50,000 less means like that. No, means but this was taken in repairs and maintenance account. Repairs and maintenance account, maintenance expenditure in trial balance at the year end, including the chairs, were 80,000. Okay, let's see that 80,000. So now the first entry will be 6,05,000 is the carry forward, and the added capital expenditure wrongly taken in revenue expenditure. It was a capital expenditure but was taken in this this thing like this. Now repairs and maintenance account, it was taken 80,000, but actually this includes capital expenditure wrongly taken in revenue expenditure. It was 10,000. So this 10,000 is deducted from here and deducted from here, and this 10,000 is added here because this was for the purchase of chairs. That was a capital expenditure. So this is added 6,15,000. Okay, now you understood this now. So this is the first entry, first effect given, added to the capital expenditure, capital item, capital furniture and fixture add किया है, and deducted from the repairs and maintenance. Now let's see. Now that profit and loss account, we have 17.1 repairs and maintenance, like this entry. This entry, repairs and maintenance, total 80,000 less capital expenditure entry rectified and transferred to revenue expenditure. And capital expenditure transferred. Rectified and transferred entry. मतलब less this was included in this. So this capital expenditure of the purchase of 2 chairs was included in this. So it is deducted, and this is this 70,000 is carry forward. If there is no any other entry, it will be taken here as 70,000. Okay, so since it is there are some other adjustments, that is the reason I kept here. Otherwise we can take it directly to the outer column. So this is the capital expenditure is deducted from that amount of capital expenditure is deducted from the revenue expenditure, repairs and maintenance, and that particular 10,000 amount is added to the capital expenditure, particular capital item. That was a furniture and fixtures. So furniture and fixture, this is added 17.1. This is added. This entry is the 21 number that I will explain you why, show how it came. So because that was a 21 adjustment entry number at 21. So this is 17.1 means 17th adjustment first adjustment entry. So this 6,05,000 plus 10,000 6,15,000. So where that entry I have shown you is that 6,05,000
plus 10,000, 6,15,000. Let's see balance sheet 6,15,000. Okay, so now then I hope you understood no how that entry is done. For example, I will show you. Means this is the thing. Suppose if it is a capital item, 1 lakh. ठीक है. So some revenue expenditure for repairs included capital item of 4 rupees capital item. So total amount of expenditure included was समझो 50,000, and this 50,000 includes say this items include capital item amount of rupees समझो 5,000. ठीक है. सो नाउ एंट्री विल बी ये जो 5,000 है दिस शुड बी एडेड टू दिस. तो ये 1,05,000 हो जाएगा. और ये जो इसमें से सिंस इट इज ये जो कैपिटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये 50,000 में ये इंक्लूड था कैपिटल आइटम. सो ये माइनस किया. तो इसको माइनस करके इधर क्या हो गया, ये हो गया 45,000. So you know दो both the effect डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट इज कम. सो एक जो है इसको ये इसमें से डिडक्ट करके मतलब इसको क्रेडिट किया. इसका इफेक्ट क्या हो गया ना. तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. नेट क्या इफेक्ट हो गया 45,000. ओके. सो इसको इधर क्रेडिट किया. अंडरस्टूड नो. दिस इज क्रेडिटेड एंड वेरस ये क्या हो गया दिस इज डेबिटेड. ये 5,000 इधर आ गया. ठीक है. सो दिस विल बी लाइक दिस. ये इधर ये एसेट्स तो डेबिट साइड में आता है ना. डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया. ठीक है. सो इधर क्या हो गया ये जो कैपिटल आइटम में ये जो रेवेन्यू आइटम के अंदर ये जो कैपिटल आइटम्स ऐड हो गया बाय मिस्टेक. तो वो यहाँ से माइनस करके मतलब ये क्रेडिट किया यहाँ से माइनस करके यहाँ ऐड कर दिया. सो दैट्स अ सिंपल थिंग. ओके. सो यू अंडरस्टूड नो. सो दिस इज वेरी सिंपल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. So now again I will explain you since it is confusing because these are very important entries. That is the reason I am just explaining in detail. So for example this furniture expenditure capital expenditure included in revenue expenditure by mistake. जो उसका प्रॉपर जो समझ में नहीं आया तो 2 चेयर परचेज था. उसने जो अकाउंटेंट ने उसको क्या किया फर्नीचर फिक्चर में लेने का कैपिटल आइटम में लेने का जगह पे उसको क्या किया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में राइट ऑफ कर दिया पूरा साल में. दो एग्जीक्यूटिव चेयर लेगा तो कम से कम 5 साल तो यूज़ होता है. तो 5 साल तक उसका डिप्रिसिएशन लेना चाहिए. इस मे बी मोर देन दैट 10 ईयर्स भी या 8 साल भी ये हो सकता है. ये मिनिमम 5 ईयर्स यूज़ करो तो वो 5 ईयर्स तक उसका एक्सपेंडिचर जो डिप्रिसिएशन लेके आना चाहिए. इट्स नॉट फॉर 1 ईयर. अभी आया अभी का भी राइट ऑफ हो गया. 1 साल के लिए कोई लेता नहीं है चेयर ऐसा. तो क्या किया तो ये जो रेवेन्यू आइटम में जो लिया था उसमें से ये माइनस करके इधर ऐड कर दिया. कैपिटल आइटम में फर्नीचर एंड फिक्चर में ऐड कर दिया. नाउ क्लियर इट इज. सी लाइक दिस. ये यहाँ से माइनस करके यहाँ ऐड कर दिया. ठीक है. ये 10,000 ऐड कर दिया. नाउ एडजस्टमेंट एंट्री सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये जो आपको ये जो बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
इंक्लूड है. सो ऐड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू अकाउंट, जस्ट ऑपोजिट हो गया उसका, जैसा मीन्स इसका जो एंट्री था उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल है, ये क्या हो गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो गया. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माइनस करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया. दैट इज़ अ थिंग. और इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या किया बाय मिस्टेक, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो गया, जस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट. तो क्या करेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ओ माइनस करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड कर देगा. वाइस वर्सा ना. सो ये एक बार समझ में आया तो ये उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री है, तो समझ में आ जाएगा. लेट्स सी नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. से फॉर एग्जांपल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो 80,000 का ये जो था, 80,000 में से ये जो था वो बाय मिस्टेक था, वो इसमें से माइनस किया तो 70,000 आ गया. और नाउ ये जो 15,000 है रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, now repairs or damaged chairs, doors, polishing etc. 10,000 was taken in furniture and fixture account. ये repairs of damaged chairs, doors, polishing, ये जो रहता है, जो छोटा मोटा जो रिपेयर मेंटेनेंस वर्क रहता है, उसका जो दो इट इज़ मीन्स जस्ट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एसेट, लेकिन वो क्या है जो रेगुलर ओवरऑलिंग या मेंटेनेंस ये सब जो होता है पेंटिंग करने का, और पेंटिंग करने का कोई भी मीन्स जो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेता नहीं है, दैट इज़ ए मेंटेनेंस वर्क. और पॉलिशिंग होता है या कुछ चेयर्स जो रिपेयर होता है, मतलब फॉर व्हील टूटा रहेगा या कुछ उसका कुशन फटा रहेगा, वो तो रिपेयर होता है. वो रिपेयर वो क्या होता है, रिपेयर्स मेंटेनेंस में लेते हैं. ठीक है, नॉट एडेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेयर एज ए मशीनरी का समझो कुछ लाखों रुपए का कुछ खर्चा जो मेजर मेंटेनेंस होता है, मेजर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड होता है. लेकिन छोटा मोटा फॉर एग्जांपल ग्रीसिंग हो गया, नट्स बोल्ट्स ये हुआ रहेगा, या छोटा मोटा कुछ स्पेयर पार्ट्स या कुछ फिल्टर या ऐसा छोटा मोटा कुछ डालता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं करता है. छोटा मोटा जो रेगुलर वर्क जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो चलने के लिए, जो मशीनरी चलाने के लिए जो होता है, कभी ऑयल होता है या कुछ ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, या कुछ नट बोल्ट्स टाइट ये होता है, या कुछ वॉशर्स चेंज करना पड़ता है. दीज आर द थिंग्स दैट treated as a repairs and maintenance. Repairs and maintenance में लेगा, won't be added to the capital expenditure. सो ये जो सेम है जो कुछ जो रिपेयर्स, जो डैमेज चेयर्स होगा, टेबल होगा, या कुछ बिल्डिंग का कुछ रिपेयरिंग वर्क होगा, छोटा मोटा जो रिपेयरिंग, पॉलिशिंग, डोर्स, ये सब जो तो होता है उसको एक्चुअल और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में है. लेकिन अगर अकाउंटेंट को अगर समझ में आया, वो सोचा रहेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए चेयर रिपेयर किया है, जो बिल्डिंग का जो पेंटिंग किया है वो छोटा मोटा जो कुछ रहेगा, या कुछ फटा हुआ रहेगा, या कुछ सीमेंट टूटा रहेगा, वो कुछ रिपेयर किया, छोटा मोटा रिपेयर किया, वो कैपिटल आइटम है करके कैपिटल में डाल दिया. तो इसको क्या किया, सो दैट वाज सो जो से दैट अमाउंट इज टेकन एज 15,000 रुपीज़. सो क्या किया है, तो ये जो फर्स्ट यू नो दैट मीन्स जो कैपिटल जो टोटल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट का जो अमाउंट है 80,000, उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला माइनस करके 70,000 आ गया. उसमें क्या ऐड किया है, जो रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली टेकन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो इसका जो पॉलिशिंग ये जो होता है वो किस में लिया था, फर्नीचर फिक्चर अकाउंट में लिया था, ऐड कर दिया था बाय मिस्टेक. ऑन द कॉन्ट्री इट शुड हैव बीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में लेना चाहिए था. तो क्या किया है, ये जो इसमें से माइनस करके ये इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, इसमें ऐड कर दिया. सो 85,000, 70 प्लस 15,000, 18,000. ये 6,15,000 माइनस 15,000, दैट इज 6 lakhs. Now let us come to the means entry effect given in trading and profit and loss account. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ये जो 80,000 में से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला आइटम्स डिडक्ट करके माइनस करके, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला इसमें जो कैपिटल में लिया था उसको ऐड कर दिया. तो दिस वाज टेकन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एंड फिक्चर में उसको ऐड कर दिया था. तो वो उधर क्या किया है, उसको ऐड कर, तो एक्चुअली इट चीज़ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सो इसमें ऐड कर दिया. नाउ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसा है देखो.
तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कितना था वो 6,05,000 में से 10,000 रुपीज़ ऐड करके 6,15,000 हो गया। 6,15,000 में से ये जो लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या गया, 6 लाख रुपया ये हो गया। यू गॉट द एंट्री 6,15,000 ये था, 6 लाख ये था, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर गया 6,15,000 लेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया 6 लाख। ओके, तो इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया और उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, सो वाइस वर्सा। ओके, सो यू गॉट इट नो, सी दिस थिंग, दिस इज माइनस एंड प्लस दिस, सो ऐड कर दिया। हियर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इसमें से माइनस किया 6 लाख। सो आई थिंक एंट्री नंबर 17, 1 and 2 is clear. Entry number 17, adjustment entry number 17, 1 and 2, it is clear. Okay, I'm taking it a little bit more time because you will be able to understand much more better, because these are very important entries. They should not make. This is a principal mistake if you are doing. This will affect the profit and loss account and net profit ratio and all this thing. This will affect. It will not give you a clear picture. So now point number 18, bills receivable dishonored. Say bills receivable amount is, let us see what is it, 18th entry number, bills receivable dishonored. Add to the amount of bill dishonored to sundry debtors in the balance sheet asset side and deduct the amount of bill dishonored from bills receivable. Come to the entry, bills receivable dishonored. Say this amount I am giving as an means for making you understand better. That is a thing. Say bills receivable amount is 1,50,000 and one bill dishonored at the time of maturity. Maturity के पहले जो है ना, वो जो maturity का time है, ये जो वो जिसे जो डिस्काउंट किया था वो बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो 1,15,000 और दैट अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट में जो ये हो गया था वो दैट वाज 80,000, वन बिल ऑफ रुपीज 80,000 डिसऑनर्ड. So sundry debtors as mentioned above was 1,11,000 that we were discussing in our very first part. सेकेंड इसमें जो एडजस्टमेंट का क्लास में किया था बैचेस में टोटल सन्ड्री डेटर्स 1,10,000 लिया था. सो इधर बैलेंस शीट में भी हम लोग 1,10,000 लिया था. अभी नाउ एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम लोग मैं ये कर लेता हूँ. लेट अस 1,10,000 17 18 पॉइंट. सो 1,10,000 था. तो एडजस्टमेंट एंट्री इन द बैलेंस शीट. Okay, the deduct from bills receivable and add to the sundry debtors account. Sundry debtors account. So bills receivable कितना है 1,50,000. उसमें से less bill dishonored 80,000. So balance bill dishonored balance bills receivable कितना है 70,000. Bills receivable amount 1,50,000 था at the final closing करने का टाइम है. लेकिन when we that time we will the accountant came to know that one bill was dishonored. तो dishonored bill को क्या करने का, dishonored bill को क्या करेगा, टोटल बिल्स रिसीवेबल से माइनस किया. सो बाकी जो बिल्स रिसीवेबल 70,000 और ये जो 80,000 ये कहाँ से जो डिसऑनर हो गया, डेटर्स का जो अमाउंट रिसीवेबल बता उसमें से डिसऑनर हो गया. तो वो डिसऑनर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, वापस सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा. बराबर है ना. बिकॉज अगर कुछ चीज़ किसी में से कुछ मिलने वाला है वो उधर से माइनस हो गया तो दूसरा किधर जाना चाहिए, जो उसका ओरिजिनल इसमें से जो समझो 50 या 10 बिल है, वो 10 बिल से 2 डिस्काउंट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल में गया. वो बिल्स रिसीवेबल था और वो कहाँ से लिया था, टोटल सन्ड्री डेटर्स में से. तो अगर समझो उसमें से 2 डिस्काउंट किया, वो जो बिल्स रिसीवेबल था वो बिल्स रिसीवेबल को एक डिसऑनर हो गया. तो वो डिसऑनर किया हुआ रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको ये सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा. वही ये किया है. तो द एंट्री इज़ वेरी सिंपल. अगर थोड़ा टेक्निकली थोड़ा दिमाग लगा के अगर ये करेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा.
तो टोटल बिल्स रिसीवेबल वाज 1,50,000, उसमें से जो डिसऑनर्ड बिल माइनस किया, सो बैलेंस बिल्स रिसीवेबल कितना है 70,000। तो ये जो 80,000 जो डिसऑनर हो गया है दैट इज एडेड बैक टू द सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो सन्ड्री डेटर्स कितना था 1,10,000 एज मीन्स इन अपना प्रीवियस इसमें है, तो 1,10,000 में से डिसऑनर्ड बिल को ऐड कर दिया 80,000, 1,90,000 सन्ड्री डेटर्स आ गया। सो नाउ द इफेक्ट अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज दिस विल नॉट टच ट्रेडिंग अकाउंट। So this will affect in the balance sheet only. Okay, so let us see, because this is a balance sheet item, this is not a trading and profit and loss account item. So now let us see 18 entry number 18। ये सब जो हम लोग ने 16 पॉइंट नंबर 2 ये सब में हम लोग ने ये किया है, 16 पॉइंट नंबर 1, 16 पॉइंट नंबर 2 एंड 18 नंबर ये है जो टोटल ये जो ये था मीन्स सन्ड्री डेटर्स 1,10,000 एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये हम लोग ने 16-11 में ये किया था। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो अनरिकॉर्ड जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये किया था, तो 1,20,000 टोटल 2,30,000। तो नाउ बिल्स डिसऑनर्ड किया था, बिल डिसऑनर्ड 80,000 था, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज वो ये हम लोग ने एंट्री किया सीखा है ना, यहाँ से जो बिल्स टोटल बिल्स रिसीव में से डिसऑनर्ड बिल्स को माइनस किया और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है 80,000 और इसका बैलेंस ये जो बिल्स रिसीव में कैरी फॉरवर्ड किया और ये 80,000 है, दैट विल बी दिस इज एडेड बैक टू द सन्ड्री डेटर्स 1,90,000। सो ये बैलेंस शीट आइटम है तो उसको ऐड बैक किया, ठीक है, 3,10,000 ऐड बैक किया 18 नंबर एंट्री, ठीक है। और ये जो 80,000 किया है सेकंड टोटल किधर है, बिल्स रिसीवेबल्स 1,50,000 प्लस बिल्स डिसऑनर्ड 80,000 दैट इज इक्वल टू 70,000, बैलेंस बिल्स रिसीवेबल है 70,000 कैरी फॉरवर्ड किया। सो नाउ दिस एंट्री इज क्लियर, यहाँ से उसको माइनस किया और यहाँ ऐड किया, ठीक है, ऐड बिल डिसऑनर्ड, ओके, एंट्री इज क्लियर, कुछ डाउट तो नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 19, एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 19, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। जस्ट उल्टा ही होगा, यहाँ हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट आ गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम वे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। Okay, so same इसका just effect opposite effect आ गया। So bills payable dishonored, now say bills payable amount is 80,000 and हम लोग को bill payable था वो 80,000, total bills payable amount 80,000 था और one bill डिसऑनर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और बिफोर इन बिटवीन, वो जो एट द टाइम ऑफ जो क्लोजिंग का जो टाइम है वो डिसऑनर जो मालूम पड़ गया, तो डिसऑनर का ये जो 30,000 का जो बिल है डिसऑनर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा इसका एंट्री। सन्ड्री डेटर्स एज मेंशन्ड अबव वाज 60,000, हम लोग सन्ड्री डेटर्स कितना ये जो किया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 था, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हम लोग ने पहले भी किया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ है, से सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 अनरिकॉर्डेड परचेसेस में हम लोग ने दिखाया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 था, तो सेम में पॉइंट नंबर 19 सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000। नाउ बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड में क्या करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का जस्ट ऑपोजिट एंट्री है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो एडजस्टमेंट एंट्री इन बैलेंस शीट, डिडक्ट इसमें ऑलरेडी किया है, ओनली इफ एंट्री कम्स आफ्टर फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। ये जो एंट्री है, नहीं तो एंट्री ऑलमोस्ट ऑलरेडी पास किया होगा, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ये जो एंट्री का इफेक्ट हुआ रहेगा, तो उसका एंट्री तो ऑलरेडी बुक में आया रहेगा, तो फिर ये एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ये फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद में मालूम पड़ गया, तो ये जो एंट्री अपना डायरेक्टली हम लोग अभी जो आप लोग को क्या इसमें बुक ऑफ
अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, दैट इज़ द रीज़न वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री, उसको डायरेक्ट इफेक्ट देना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में। दैट इज़ द रीज़न ये जो पॉइंट्स डाला है। सो नाउ इधर बिल्स रिसीवेबल को जो माइनस किया था, इधर देखो बिल्स पेएबल कितना था, बिल्स पेएबल 80,000 था। ये बिल्स पेएबल 80,000 को उसमें से लेस बिल्स डिसऑनर्ड ये हो गया, बैलेंस कितना है 50,000 कैरी फॉरवर्ड किया। तो दिस इज द इफेक्ट कमिंग इन द लेफ्ट साइड, मीन्स लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये जो आ रहा है असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आ रहा है, ठीक है। बिल्स जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड असेट साइड में इफेक्ट आ रहा है। यहाँ इसका यहाँ इसका डेबिट इफेक्ट आ रहा है, ऐड कर रहा है, डेबिट इफेक्ट आ रहा है। यहाँ इसका क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है, तो एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, तो डबल एंट्री ये। सो इसका ये जो हो रहा है सेम वे इधर जो है, यहाँ इसका इसको इधर इसका डेबिट इफेक्ट एंट्री आ रहा है, यहाँ इसको क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है। सो देखो बिल्स पेएबल टोटल 80,000 था, उसमें से 30,000 माइनस करके बैलेंस 50,000 कैरी फॉरवर्ड किया। और ये क्या करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड किया। यह हम लोग ने सन्ड्री डेटर्स में ऐड किया, इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड किया। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल कितना है 60,000। वो 60,000 में डिसऑनर्ड बिल का जो 30,000 का जो था वो ऐड किया, तो 90,000 कैरी फॉरवर्ड किया। तो यहाँ से जो अपना टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स था उसमें से ये जो दो बिल्स पेएबल 80,000 ये रखा था, तो 80,000 में से एक बिल अगर डिसऑनर हो गया 30,000 का, तो उतना ये माइनस करके इतना सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ गया जो ऐड हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स में। दैट इज़ द थिंग। यहाँ कैसा हो गया था, ये बिल्स रिसीवेबल, हम लोग को इतना बिल रिसीवेबल था, उसमें से एक डिसऑनर हो गया, सामने वाला डिसऑनर कर दिया तो डिसऑनर हो गया, तो वो उतना बिल्स रिसीवेबल उसको उसमें से वो माइनस करके वो इधर ऐड कर दिया। तो that entry effect, every just see that there is a debit and credit effect is given once। एक साइड में से जो तो ये टोटल लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। ये वी हैव सीन दैट दिस कम्स इन द असेट साइड। सी असेट साइड में से इधर डेबिट इफेक्ट आ गया, इधर क्रेडिट इफेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ से माइनस किया, यहाँ ऐड किया, तो इधर डेबिट इफेक्ट आ गया, इधर क्रेडिट इफेक्ट आ गया। इधर एक साइड पे माइनस करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, इधर डिडक्ट करते हैं। सेम वे जो अभी हम लोग का जो एंट्री है ये लाइबिलिटी साइड में आ गया, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, ये वाला पूरा लाइबिलिटी साइड में आ गया, पूरा लाइबिलिटी साइड में आ गया। जस्ट सी दैट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम नहीं है, बैलेंस शीट आइटम है। इसके लिए दिस विल नॉट टच इन, दिस एंट्री विल नॉट टच इन पास थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस शीट आइटम है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दे देते हैं। तो नो टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था 60,000। तो बिल्स पेएबल कितना था 80,000। 80,000 में से लेस बिल डिसऑनर्ड 30,000। 80,000 में से 30,000 डिडक्ट करके 50,000 बिल्स पेएबल कैरी फॉरवर्ड किया। और उतना जो ये जो है बिल्स डिसऑनर्ड जो बिल्स पेएबल को इधर ऐड किया है। सो 60 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज का टोटल 1,40,000 हो गया। 1,40,000 प्लस 30,000 1,70,000 क्रेडिटर्स कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, taken to the outer column of the balance sheet. Now I think this is clear. So यहाँ भी इफेक्ट सेम ही है, हम लोग ने जैसा किया था। क्रेडिटर्स से 51 लाख और सन्ड्री समझो 50,000, ठीक है। सो एक इसमें से एक 20,000 का डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड 20,000। तो इसको क्या किया है, इसका डेबिट इफेक्ट ये
ठीक है, क्रेडिट है ना, तो इसका डेबिट इफेक्ट इधर 20,000 माइनस किया, ठीक है, तो बैलेंस कितना हो गया, इसको डेबिट एंट्री इधर ही है, इसका डेबिट इफेक्ट ये है, तो इसको ये इसमें से माइनस किया 30,000 हो गया, और इसका क्रेडिट इफेक्ट इधर किया, इसको इधर 20,000 ऐड किया, सो इधर कितना हो गया 1,20,000. सो दिस इज द थिंग. सेम हम लोग ना इसका डेबिट इफेक्ट इधर दे रहे हैं और क्रेडिट इफेक्ट इधर दे रहे हैं. सो एवरीवेयर देयर इज अ डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट. सिंस इट इज़ अ बैलेंस शीट आइटम, और बैलेंस शीट आइटम में उसका इफेक्ट किया. बिल्स रिसीवेबल में जो एंट्री कैसा किया है, सो उसका सन्डे डेटर्स में इसका इफेक्ट किया है. बिल्स पेएबल का जो इफेक्ट है वो सन्डे क्रेडिटर्स में इफेक्ट किया है. सो एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 17 कंप्लीट हो गया. नाउ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 20. लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक. 20 तक कंप्लीट करके हम लोग इसको आज का क्लास ये करता हूँ, ठीक है. Deferred expenses of advertisement paid for 5 years. Advertisement expenses related to current year debited to profit and loss account, and the remaining amount of advertisement is shown on the asset side of the balance sheet as a prepaid advertisement or a deferred expenditure in bracket advertisement for given for advertisement. So ये जो है ये deferred expenses का भी ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है. So now deferred expenses for advertisement paid for 5 years paid on 1st April means for example आपका जो कुछ convenience के जो बोल रहा हूँ, ये अगर समझो 28th में 2021 में अगर रहेगा तो इसके हिसाब से 28 से लेके 31st मार्च टू 31st मार्च 2022 तक जो है उतना अमाउंट का प्रोपोर्शनेट वो इधर ले लेगा, ये पर करंट ईयर में ले लेगा, वो करंट ईयर में लेके बाकी का कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है. दैट इज़ अ थिंग. सो ये जो एग्जांपल आपका समझने के लिए मैंने 1 लाख लिया है. ये एंट्री 1 अप्रैल 2021 में स्पेंड हो गया था. अभी नाउ ये जो 5 इयर्स के लिए 1 लाख बोलेगा तो 20,000 ईच. 20,000 इंटू 5 मीन्स 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20,000. तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स है. 12 मंथ्स में 20,000 का डेबिट करने का है एक्सपेंडिचर, और बाकी का जो बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने का है. So the expenditure for the particular accounting year must debit to the profit and loss account and credit the amount from the amount that the and the balance to be carried forward. So understood that expenditure for that particular amount means वो ये जो है इसका जो particular जो है इसका फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने समझो ये 1 लाख है. 1 लाख को का ये जो डेबिट एंट्री है ना, टोटल एक्सपेंडिचर बोलेगा तो डेबिट एंट्री, उसमें से 20,000 को क्रेडिट किया और कहाँ लिया है, और ये इसको इधर क्रेडिट एंट्री करके इसके जो इफेक्ट जो है वो डेबिट कहाँ ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ले लिया और ये इसका क्रेडिट इफेक्ट इधर दिया, और ये जो क्रेडिट इधर इफेक्ट इधर दे के 80,000 को कैरी फॉरवर्ड किया. टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, उसमें से क्रेडिट इफेक्ट इधर दिया, डेबिट इफेक्ट इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया, क्रेडिट इधर में से माइनस किया. होप इट इज़ क्लियर, ठीक है. नाउ एंट्री का इफेक्ट बताता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करेगा और बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा. I'll see that, show you that. Now what is that? 20 एंट्री नंबर. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने लास्ट में लिया था. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूटर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना था, 14, एंट्री नंबर 14 था, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैम्पल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैम्पल्स करके हम लोगों ने 14 एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 14 था. 14 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैम्पल्स, उसका एंट्री किया था. क्रेडिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में
फ्री सैम्पल्स सी फ्री सैम्पल्स 60,000 14 एंट्री नंबर और उसका इधर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था 40 नंबर एंट्री और उसमें से ये जो अभी जो 20 एंट्री नंबर ऐड डिफर्ड एक्सपेंडिचर वो डिफर्ड एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख है 1 लाख डिफर्ड एक्सपेंडिचर इन द deferred advertisement expenditure for 5 years paid for 5 years so that is 1 lakh 1 lakh में से ये जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 बाकी 80,000 कैरी फॉरवर्ड किया सो ये जो 20,000 है वो इधर ऐड किया है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया होप दिस इज अंडरस्टूड क्लियर टोटल डिफर्ड एक्सपेंडिचर कितना था डिफर्ड एक्सपेंडिचर समझो टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर 5 years को पेमेंट किया था 1 लाख उसमें से पर्टिकुलर ईयर का फॉर द ईयर 20,000 था तो ये 20,000 को बैलेंस 80,000 ये 20,000 को इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड किया ठीक है ओके ये 20,000 और वो उतना ये जो टोटल जो है इसमें से माइनस करके 80,000 कैरी फॉरवर्ड किया इधर बैलेंस शीट में ओके नाउ इट इज़ क्लियर होप दिस इज सिंपल just go through it again and again so that it will be very clear. Now we have gone done up to 20 point number 20. Let us see the other thing in the next class 21 and 22. It will go for I think 1 or more classes. This adjustment entries are very important. That is the reason I am going slow and trying to explain you the maximum possible in order to make you understand better. Okay, now let us conclude this we have done today 17 point number 1 and 2 18 19 and 24 19 and 20 so this points we discussed today. Next 21 22 and other remaining some adjustments also we will learn in the next class. Okay, let us conclude. Otherwise it will be very difficult to understand whatever I just put it in this thing. You have to practice, you have to learn and practice then it will be very easy. Let us as usual I am telling you, I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again because I want all my students to score full marks in the subject. Or just close to 100% mark, and it is possible. Few of my students has done that, scored 100% mark. So most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. That is more important because make a strong base today, or if it is not benefit to you today, it will make benefit you in the future. For example, if you are just going for CA or CS or any higher courses, SCWA, MBA or any other financial field, it will be helpful to you. So make a strong base. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal, and it's possible. Now my message, please help each other to grow together for a better India. I request you all to share the video classes to reach more and more people so that many students and public can take the benefit. Many students may require this type of services, free classes and all this thing. Some of the students may not understand in the classroom, and some of them may not be able to study at their convenient time. Since it is a recorded classes, you can open it at any time and read and pause it, watch it, drag it back and read it again. So this will be helpful. I'm trying to explain you much in more detail so that it will make you more understand better, and it is I'm doing it on a practical approach side. So thank you for your attention. See you next class.